So let's dive into the RBI circulars that was there from the month of March. Priority sector lending, some changes are there into priority sector lending. All the rules remain the same. जितने सारे रूल्स थे वो सेम है प्रायोरिटी सेक्टर के, बस कुछ चीज़ें चेंज हुआ है. लाइक द PSL लिमिट्स गॉट चेंज्ड, राइट. Session is bilingual. I will be making you understand both in Hindi and English. In internal session we will have separate classes, but here as this is a common YouTube session, so it is it is bilingual only, right? So we have these 8 sectors, but limits have different for different sectors. Overall limit is 40%, you all know, right? And for foreign banks with less than 20 branches, the target is 32%. 40% is overall target. Out of 32 could be achieved from lending to exports, because these are bigger banks. They have limited branches in India, situated in metropolitan center. So how could they go for small and marginal farmers? They could go for agricultural lending, so they can adjust it from their export needs. RRBs and small finance banks have 75% of target. This is the same, no changes. There are changes in UCB's target. UCB, the RBI earlier said that we will make it up to 75%, like they are in RRBs and they are in cooperative banks. They are in small finance banks. But now they changed their mind. It is 60%. ठीक है. अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके PSL के टारगेट जो है वो 60% है. ठीक है. चलिए, एंड एग्री PSL सॉफ्ट टारगेट्स मैंने इंटरनल क्लास में भी आपको दिया है. मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको दिया है, फिर थ्योरी फॉर्म में दिया है. जिसको जिस तरह से समझ में आता है वो समझ जाए. उसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप यू कैन रिमेंबर इट, राइट. फार्म क्रेडिट में अप टू 12 मंथ, जो पहले 75 लाख 50 लाख था, वो चेंज होकर 90 लाख 60 लाख. हियर इट इज़ ए वर्किंग कैपिटल लिमिट जनरली गिवन टू KCC होल्डर्स और गिवन टू फार्मर्स who put their hard-earned crops in warehouse and take warehouse receipts. So once they have their warehouse receipts, if it is a negotiable one, means they can endorse it to somebody, then it is the limit is 90 lakhs subject to 12 months loan period. Loan period can be more than 12 months. Loan amount can be more than 90 lakhs. But remember, above that limit will not be categorized as PSL. So in order to categorize it as PSL, the loan limit should be under 90 lakh and the repayment tenor should be under 12 months. Fix this in mind, right? इंटरनल PSL का एक मैंने स्पेशल सेशन लिया है जो आपके इंटरनल वीडियोस में अवेलेबल है, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में अवेलेबल है, उसमें भी आप इसको कवर कर पाएंगे. आगे जाकर हम PSL के सेपरेट सेशन में भी ये सब देखेंगे. अगर ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट नहीं है तो नया लिमिट जो है वो 60 लाख है. एग्री और अलाइड एक्टिविटीज़ में 4 करोड़ पर एंटिटी है. इफ दे प्लेज द प्रोड्यूस, farm produce. What is the farm produce? What you produce, what you harvest out of your farm. Like if you are growing paddy, then or you growing wheat, then this paddy, this wheat is called the produce. If you are pledging that produce or taking warehouse receipts, depositing it in a warehouse and taking a warehouse receipt, then the limit is 4 crore for corporate farmers. Corporate farmers are farm producer organizations, farm producer companies. Means 4 of us, 5 of us came together and said that we will form a company, we will form a partnership farm for a bigger farming activities. So for them it is 4 crore. If it is not negotiable, it is 2.5. For individuals it is 90 lakhs. Individuals it is 90 lakhs. For others it is 2.5 lakhs. So if assured marketing is given at a predetermined price, then the PSL limit is 10 crore. Means if they have gone with an agreement with a company, like मैं अपने एरिया में पैडी उगाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं टमाटर उगाता हूँ. बेस्ट एग्जांपल, मैं टमाटर उगाता हूँ. रिलायंस फ्रेश वाला बोलता है मुझे आकर, मुकेश अंबानी फ़ोन करते हैं, सर आप जो भी टमाटर उगाएंगे, ठीक है, हम ले जाएंगे. डोंट वरी सर, आपका टमाटर वर्ल्ड क्लास टमाटर है. When you have tomatoes ready, just call us. Our agents will go and pick it up. In such cases, it will be 10 crores. The limit will be 10 crores in PSL. Getting it? Prudential capital adequacy norms में चेंज हुआ है. उनको मिनिमम 9% मेंटेन करना होगा. ठीक है. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम
1.5% of their risk weighted assets they can put in perpetual debt instruments. Tier 1 कैपिटल का ये देख लीजिए क्या क्या टीयर 1 कैपिटल में आता है. दीज थिंग्स कम्स अंडर टीयर 1 कैपिटल. दे ऑल्सो आस्क इन इंटरव्यूज. बेसल, ये बेसल का पार्ट है, ठीक है. बेसल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी बैंक एग्जाम एंड इंटरव्यू. स्पेशली इन इंटरव्यू, इफ दे आस्क यू अबाउट बेसल एंड यू आंसर, रिमेंबर 90% यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. दैट इज ए गुड साइन. सो टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या आता है. जब मैं प्रिपेयर करता था तब मुझे बहुत बार टीयर 1 टीयर 2 के कैपिटल के भीतर जो डिफरेंस है उसमें क्वेश्चन आया है. एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्स में मुझे पूछा गया है. पेड अप शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी एंड फ्री रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम. शेयर प्रीमियम क्या होता है. जैसे आपने शेयर इशू किया 10 रुपये में, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, इट इज़ लिस्टेड इन मार्केट एट 100 रुपीज़, दैट 90 रुपीज़ कलेक्टेड फ्रॉम ईच शेयर इज द शेयर प्रीमियम. Revaluation reserves with 55% discount, balance in profit and loss account previous year, perpetual debt instruments PDIs. perpetual मतलब never ending, ठीक है. डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनका मैच्योरिटी नहीं है. ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिनका कोई मैच्योरिटी नहीं है वो बाहर देशों में 100 ईयर्स के लिए चलता है, बट इंडिया में 20 ईयर्स का लिमिट है. जो अनलिमिटेड पीरियड है वो 20 ईयर्स ही है, ठीक है. देन what will be deducted from tier 1, goodwill and intangible assets, क्योंकि इसको तो आप अमाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर पहले आपने कैलकुलेट किया है. goodwill और intangible asset is not your part of your tier 1 capital. accumulated and current losses will be deducted from tier 1 capital. pension fund assets and NPA provisions will also be deducted from tier 1 capital, ठीक है. टीयर 2 कैपिटल में जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स. जनरल प्रोविजंस आपके जो व्हाट इज जनरल प्रोविजन, जैसे आपके एनपीए के लिए जो प्रोविजनिंग आप कर रहे हो वो प्रोविजनिंग अमाउंट आपके टीयर 2 कैपिटल में जाता है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, 1 करोड़ का वैल्यू 10 लाख 20 लाख कम हो सकता है कल के डेट में, तो उसी लॉस को मेकअप करने के लिए आप एक सेपरेट रिजर्व मेंटेन करते हो ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण से इफ दे गो डाउन देन दिस रिजर्व विल बी हेल्पिंग यू. that will be part of your tier 2 capital, and maximum tier 2 capital is allowed is 100% of tier 1 capital. ये आपके जनरल एग्जाम में भी आ सकता है. जो tier 2 कैपिटल है वो कभी भी आपके tier 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 25 तक हमारा सेकेंड बैच का लिमिट है. उसके बाद आपको रिकॉर्डेड और कॉन्साइज क्लास मिलेगा. लाइव बैचेस के लिए बैच 2 तक ही आप ज्वाइन कर पाएंगे, उसके बाद बैच 3 नहीं आएगा. आप बैच 2 का ही एक्सटेंशन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को रिकॉर्डेड में कवर करना पड़ेगा. सो बी फास्ट एज पॉसिबल. एंड वन थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू, डिस्काउंट कूपन नहीं है. डिस्काउंट कूपन देना नहीं चाहता मैं मार्केटिंग के लिए बना नहीं हूँ, सीरियस स्टूडेंट्स के लिए बना हूँ. फिर भी अगर आपको गोलगप्पे के साथ सूखा खाने की आदत बन चुका है, न्यू 10 इज द कोड. आई विल वंस अगेन रिकमेंड कि आप इसको बिना यूज करके नॉलेजिस्ट में ज्वाइन करिए. मैं हमेशा, मेरे पास तो ये न्यू 10 वाला कोड 2 to 3% लोग ही अप्लाई करते हैं. मैं देता नहीं हूँ, पर फिर भी आपको, क्योंकि वेबसाइट में भी फ्लैश हो जाता है, अगर आप चाहते हैं तो न्यू 10 यूज़ कर सकते हो 10%. अदरवाइज इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, ये सब डिस्काउंट, ये सब गोलगप्पे के साथ सूखा खाना, ये सब आदत छोड़ दीजिए. देयर इज़ नो फ्री मील इन दिस वर्ल्ड. इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम प्राइसी थिंग, प्राइस इज इक्वल टू क्वालिटी. आपका कैरियर का सवाल है. और आप नॉलेजिस्ट इसीलिए भी ज्वाइन मत करिए क्योंकि नॉलेजिस्ट ने कोर्स लॉन्च किया है, हमने लॉन्च किया है, तो आप ज्वाइन मत करिए. अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको सीरियस तैयारी करना है तो आप करिए. WA रिस्क वेटेड एसेट इज एवरी एसेट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक, एवरी लोन एंड एवरी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक कैरीज ए सर्टन रिस्क, ठीक है. सो बेस्ड ऑन दैट रिस्क एसोसिएटेड टू दैट इंडिविजुअल प्रोडक्ट ए वेटेज इज गिवन. मतलब अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है बैंक से, 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, चांस है कि बैंक को 1,50,000 का नुकसान होगा. सो 150% RWA इन क्रेडिट कार्ड्स. क्यों? आप बोलेंगे सर लिया तो 1 लाख है तो 1.5 लाख का नुकसान हमें कैसे हो जाएगा, ठीक है. तो वो एक मीम चलता है ना ओमपुरी का कि हमारा इन्वेस्टमेंट ही 1 करोड़ है, 2 करोड़ का लॉस कहाँ से हो गया. वैसे ही बैंक में होता है. कैसे होता है मुझे बता पाएंगे कैसे होता है? कैन यू टेल मी कैसे होता है?
बताइए इस सिंपल चीज का उदाहरण, इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, नुकसान 1.5 लाख का कैसे हो जाता है? यस, ये जो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, आपके घर से लेकर तो इन्वेस्ट नहीं किया है, ये डिपोजिटर्स का पैसा है। डिपोजिटर्स को आपको 7% 8% के रेट में रिटर्न करना होगा, दैट इज देयर, राइट। एंड फॉर दैट 1 लाख ड्यू यू हैव योर ऑपरेशन ऑप्स एक्सपेंसेस, ऑपरेशन का भी एक्सपेंस हुआ होगा ना, कोई सेल्स मैनेजर रिक्रूट हुआ होगा, उसके अंडर एजेंट्स रिक्रूट हुए होंगे, उसको सेल करने के लिए क्रेडिट कार्ड बैंक का खर्चा हुआ होगा, देन रिकवरी के लिए एनपीए मैकेनिज्म के लिए आपका खर्चा हुआ होगा, राइट। एनपीए रिकवरी के लिए 10 बार एजेंट फोन किया होगा, गया होगा, उसका टाइम भी खत्म हुआ होगा। फिर क्या आता है, 1 लाख अगर आपका लॉस है, अगर लॉस अकाउंट में चला जाएगा, 1 लाख आपको करेंट प्रॉफिट में से निकाल के प्रोविजनिंग करना होगा, हुआ कि नहीं लॉस? सो इसीलिए क्रेडिट कार्ड 150% रिस्क वेट है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा, मैं इसीलिए अचानक आज मार्च का सर्कुलर इसीलिए लॉन्च किया था कि कुछ लोगों को कितने पानी में है वो पता चलेगा, एंड यू विल बी कंपेल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैक्सिमम टियर 2 कैपिटल अलाउड, 100% ऑफ टियर 1, समझ में आया बात? प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी में आपको 99% का रिजर्व होना होगा, कैपिटल कंजर्वेशन बफर आपका 2.5%, बेसल क्लास में आपको समझ आ जाएगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्यों बदलाव हुआ है? देयर इज नो मोर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया है? अचानक गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमने ये क्या बवाल खड़ा कर दिया है। गोल्ड, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट जब बजट बनाता है, बजट में डेफिसिट बजट बन जाता है। व्हाट हैपन्स, आई लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड, आई थिंक यू पीपल हैव टाइम, एनफ टाइम, लेट मी टेल यू, गिव ए बैकग्राउंड। व्हेन बजट इज गिवन, बजट स्पीच आपने देखा हुआ, एक फिस्कल डेफिसिट करके आता है, मतलब गवर्नमेंट का इनकम कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, इनकम लेस है, इनकम हायर एक्सपेंडिचर, सो दे नीड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये तो पैसा आएगा, जैसे आपका सैलरी 20 तारीख को खत्म हो जाता है, 50,000 का सैलरी, खर्चा 60,000 का, ये 10,000 आप कहीं से तो लाते होंगे, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, राइट। आप ही का हाल गवर्नमेंट का है, तो आप क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड से पैसा उधारी ले लेते हो, पीएल ले लेते हो, घर वालों को मांगते हो, दोस्त को मांगते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे मांगता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे मांगता है? सरकार मांगते हुए अच्छे नहीं लगते तो सरकार स्कीम निकालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? ये सब स्मॉल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, डिपॉजिट रिलेटेड स्कीम्स, ये सब सिक्योरिटीज होते हैं। लोन उधारी मांगने का तरीका होता है, वही काम है, बस उसको बहला फुसला कर आपसे गवर्नमेंट मांगता है कुछ तो दे दो, नहीं तो घर नहीं चलेगा भाई, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, शायद इस टॉपिक के ऊपर आरबीआई सर्कुलर हमने स्किप किया है, फिर भी आप इसका आंसर करिए। अंडर द रिवाइज्ड नॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट गारंटेड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, व्हाट इज द वैल्यूएशन ट्रीटमेंट इफ द गवर्नमेंट गारंटी एंड्स और सेटल्ड? इसको आप थोड़ा ब्रेन भी लगाकर आंसर कर सकते हो, ठीक है। T bill and zero coupon bonds are not same, they are different. Treasury bills are up to 364 days, ठीक है। It will be value will be treated as ₹1, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी नहीं है तो सेटल भी हो चुका है, तो रिजर्व में उसको हम ₹1 में कैलकुलेट करेंगे। अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सिक्योरिटी रिसीट्स, SR में मतलब सिक्योरिटी रिसीट्स रिसीव्ड बाय बैंक्स दैट आर नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी must be deducted from CET1 capital, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिन्यूअल ऑप्शन, फुल, पार्शियल और रेट्रोस्पेक्टिव पोस्ट मार्च 26, 2025? ऑल रिन्यूअल ऑप्शंस हैव बीन डिसकंटिन्यूड, नो रिन्यूअल, ओनली रिडेम्पशन, मतलब आप पार्शियल विड्रॉ या फिर विड्रॉ कर सकते हो, आप रिन्यूअल नहीं कर सकते, ठीक है। What is the maximum maturity period for treasury bills as per 2025 notification? ये तो आंसर आप कर ही पाएंगे, 364 days, 364 days, ठीक है।
मैक्सिमम पीरियड पूछा है, मिनिमम पीरियड नहीं पूछा है, ठीक है। और मिनिमम पीरियड 90 डेज का कोई ट्रेजरी बिल नहीं होता है। यहाँ पे आप सब पीछे जा रहे हैं।